જય અવધૂત. જીવનમાં નામ સ્મરણ અને જપયોગની ખૂબ જ અગત્યતા છે. આધ્યાત્મ માર્ગમાં અંતર શુદ્ધિ ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ જીવનની ભાગદોડમાં ઘણી વખત આપણે નામ સ્મરણ લેવાનું ભૂલી જતા હોઈએ છીએ, જપયોગનું મહત્ત્વ ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. ત્યારે જરૂર છે કોઈ એક સૂચકની, અને એ સૂચક છે આપણું સ્ટેન્ડિંગ કેલેન્ડર. પૂજ્યશ્રીની કૃપા પ્રસાદી રૂપ આ સ્ટેન્ડિંગ કેલેન્ડર તમે પોતાના ઘરે રાખી શકો છો, ઓફિસે રાખી શકો છો. આ સ્ટેન્ડિંગ કેલેન્ડરના અંદર પૂજ્યશ્રીના વિવિધ ફોટાઓ સાથે 31 વિચારો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ચિંતન મનન દ્વારા તમે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ખૂબ જ સહજતાથી અને સરળતાથી આગળ વધી શકો છો. આ સ્ટેન્ડિંગ કેલેન્ડરની કિંમત ફક્ત 150 રૂપિયા છે, જે તમે હોલના સ્ટોલ પરથી મેળવી શકો છો. ખૂબ જ જૂજ કોપી બાકી છે, તો સૌ નાથ ભક્તોને નમ્ર વિનંતી છે પોતાની કોપી અવશ્ય મેળવી લેવી. બીજું, તમે જાણો છો તેમ શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનું લવાજમ જો આપનું ભરવાનું બાકી હોય તો વહેલી તકે તમે તમારા વોલેન્ટિયર મિત્રને 100 રૂપિયા જમા કરાવી શકશો. બીજી ખાસ સૂચના, 29 ડિસેમ્બરને મંગળવારે દત્ત જયંતિ મહોત્સવ છે. હાલ લોકડાઉનને કારણે પ્રોટોકોલને ધ્યાનમાં રાખતા સંક્ષિપ્ત રીતે ગુરુવારની પદ્ધતિ મુજબ આપણે દત્ત જયંતિ ઉજવીશું. નવનાથ ધામની વર્ષોની પ્રણાલી મુજબ સવારે ગુરુ પૂજન થશે, ત્યારબાદ દત્ત ભગવાનનું પૂજન થશે અને દત્ત ગોરખની પૂજા થશે. 11 થી 1ના ગાળામાં પ્રવચન થશે. પરંતુ લોકડાઉનને કારણે આ કાર્યક્રમ જગ જાહેર નથી. પૂજ્યશ્રીની વિચાર ગંગા આપ 29 તારીખે રાત્રે 8 કલાકે યુટ્યુબ અને ફેસબુકના માધ્યમથી અવશ્ય નિહાળી શકશો. પૂજ્યશ્રીના દિવ્ય વિચાર ગંગાના જે પ્રવચનો છે તે અવશ્ય શેર કરવા, લાઈક કરવા અને સૌથી મહત્ત્વ છે તેને વારંવાર સાંભળવા. કારણ કે જેટલું તમે સાંભળશો તેટલું તેમાંથી નવું નવું તમને જાણવા મળશે. વિશેષમાં આજનો ભંડારો સ્મિતાબેન છનાભાઈ પટેલ કોપરલી તરફથી છે. સદગુરુદેવ તેમને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ અર્પે એવી અભ્યર્થના. હવે આજના પાવન દિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ધ્યાનમૂલં ગુરુમૂર્તિ પૂજામૂલં ગુરુપદં મંત્રમૂલં ગુરુવાક્ય મોક્ષમૂલં ગુરુકૃપા. યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ શ્રી સાંઈનાથ ગુરુ મચ્છેન્દ્રનાથ કી જય. આનંદી લાલ કી જય. छोटे दादा की जय. यहीं हम सबके हृदय में प्रेम स्वरूप, औषध स्वरूप और अमृत स्वरूप में उपस्थित ऐसे सदगुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम. एवं जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन कर रहे हैं, विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को मेरा जयवदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश. प्रभु के नाम का स्मरण, प्रभु के नाम का जपन और प्रभु के नाम का चिंतन, यह हमारे जीवन की आंतरिक साधना है.
यह आंतरिक साधना नित्य नियम से प्रति क्षण प्रति श्वास करते रहने से हमारे जीवन में हमारी आंतरिक सुधारणा होती है, हमारे जीवन को प्रकाश प्राप्त होता है, हमारे जीवन को आधार प्राप्त होता है, हमारे जीवन को एक आहार प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु नाम जप को, प्रभु नाम के स्मरण को परमात्मा तक, जीव को शिव तक जोड़ने वाला एक सेतु माना गया है कि जीव शिव शिव का स्मरण करते रहे तो स्वाभाविक भाव से वो शिवत्व को प्राप्त कर जाता है। इसलिए नाम स्मरण के अनुभव को एक चिंगारी माना गया है कि नाम स्मरण करने से, नाम जप करने से, मंत्र का रटन करने से हमारे अंदर ज्ञान रूपी ज्योत प्रकट हो जाती है और यह ज्ञान रूपी ज्योत की एक चिंगारी हमारे अंतःकरण के विकारों को जला देती है। हमारे किए हुए मानसिक, कायिक और वाचिक जितने भी पाप है उसको भस्म कर देती है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। और इसलिए यह हमारा जो पूरा जीवन है यह दंडकारण्य माना गया कि दंडकारण्य में यह जीव भटक रहा है, यह वन में, दंडकारण्य में यह जीव भटक रहा है। दंडकारण्य प्रदेश में कहीं भी आप जाइए, वहां अगर खेती करनी है तो जमीन को जला दिया जाता है और जली हुई जमीन के ऊपर खेती करने से, फसल बोने से वहां पाक पैदा होता है। ठीक उसी तरह यह हमारा पूरा शरीर एक डंडे के ऊपर खड़ा है। जिस डंडे को हम करोड़रज्जु बोलते हैं, यही डंडे के ऊपर हमारे सभी चक्र है, 7 चक्र है और ये 7 चक्रों के डंडे के ऊपर खड़ा हुआ ये शरीर, इसे दंडकारण्य माना गया। यहां फसल तभी उग सकती है, यहां खेती तभी हो सकती है जब इसकी मनोभूमि को जला दिया जाए। यह मनो जो है, जहां मन के पाप, शरीर के पाप, वाणी के पाप यहां दर्प बनते हुए बैठे हैं, जब तक इस कचरे को न जलाया जाए तब तक यहां शांति रूपी फसल, आनंद रूपी फसल, संतोष रूपी फसल, समाधान रूपी फसल नहीं हो सकती। इसलिए अंतःकरण की मनोभूमि को जलाने के लिए भी, हमारे अंदर बसे हुए विकृतियों को भस्म करने के लिए भी नाम जप की चिंगारी जरूरी है। जहां मनोभूमि जल जाती है, अंतःकरण शुद्धि होती है, वहां स्वाभाविक ही माना जाता है कि यह आंतरिक साधना है। यह कोई बहिर्मुखी साधना है नहीं कि जो बाहर से दिखे, जो बाहर से की जाए। यह आंतरिक साधना है कि जो जब आप अपने मन में करें, खुद बोले खुद सुने और जप करे। जप करते करते करते
खुली आंखों से जप करते 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 जब हमारी आंखों की पुतलियां बंद हो जाए तो स्वाभाविक है कि यह जप आंतरिक साधना हो जाती है। और इसलिए कहा गया है कि आप बोले हाथ में माला लेके घुमाते रहो, लेकिन जब तक आंतरिक जप नहीं होगा तब तक यह माला आडंबर है। किसी आसन के ऊपर बैठे हुए आप जप करो, लेकिन आंतरिक रूप से आसानी से जब तक नहीं होगा, प्रत्येक श्वास श्वास में, आने और जाने वाले श्वास में जब तक जप नहीं होगा तब तक ये आसन या आडंबर है। आप अपने मस्तक के ऊपर, भाल के ऊपर कितने भी तिलक लगाए, वो चंदन के हो या भस्म के हो या सिंदूर के हो, लेकिन जब तक आंतरिक साधना करने के बाद हमारा आज्ञा चक्र जब तक प्रवृत्त नहीं होता तब तक समझिए कि जो भी हमने तिलक किए हैं ये सभी बाह्य आडंबर है। यह आंतरिक जप करने से जब तक हमारे हृदय के भाव में परिवर्तन नहीं होता, हमने जो कुछ किया है उसका पश्चाताप हमें नहीं होता, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमें आदर नहीं होता, हमें प्रेम नहीं होता, तो समझ लीजिए कि जो माला आपने पहनी है और जो माला आपके हृदय के बीचों बीच आ रही है, यह माला पहनना भी एक आडंबर है। यानी बाह्य परिवेश ये साधना के लिए मानसिक रूप से जरूरी है। वो हमें एक आधार देते हैं कि मैं जप कर रहा हूं, माला साथ में है, मेरा जप माला के साथ घूम रहा है, एक आधार मिलता है हमें। आसन के ऊपर बैठने के बाद एक आधार मिलता है कि मैं कुछ सात्विक वस्तु के ऊपर बैठा हूं, आसानी से बैठा हूं, कोई आसन लगा के बैठा हूं। हमारे मस्तक के ऊपर, भाल के ऊपर तिलक करने से हमें अनुभूति होती है कि यहां मैंने कुछ ऐसा लगाया है, मेरा ध्यान वहां केंद्रित होता है, एक आधार के लिए जरूरी है। गले में माला पहनने से हमने गुरुदेव की दी हुई माला को परिधान किया है, एक मंगलसूत्र है जो हमने पहना है हमारे गुरु के नाम का। जब जब माला करते हुए हमारी नजर नीचे झुके और जब जब ये माला दिखे तो गुरु का स्मरण हो जाए, परमात्मा का स्मरण हो जाए, ये आधार के लिए जरूरी है। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर आंतरिक जप न हो, आंतरिक रटन न हो, अंतर्मुखी हम जब तक न हो पाए, यानी बाहर भी घूमे और जब अंदर भी घूमे, ये भाव जब तक हमारे अंदर बाहर ना आ पाए तब तक ये सब आडंबर माना जाता है। इसलिए जब जब हो, जपन हो, चिंतन हो और भीतर में एक आंतरिक सुधारणा होने लगे, हमारा जीवन अंदर से बदलने लगे और यही सब अनुभव जब हमें आने लगे तब समझना चाहिए कि हमारा जप हमारे लिए एक दिव्य अमृतमय औषधि समान होने लगा है। यह जप एक ऐसी औषधि है और अमृतमय औषधि है कि जो हमारे भवरोग को जला देती है। और ये भवरोग को जला देने वाली औषधि हमें देने वाला कोई वेदराज, और उस वेदराज का नाम है, जिसने हमें मंत्र दिया, वो हमारे सद्गुरु है। इसलिए जब होने लगे और आंतरिक सुधारणा हो तो इसे अनुभव माना जाए। हम सब कहते हैं कि हम मंत्र जाप करते हैं, हमें अभी तक कोई अनुभव नहीं हो रहा, हमें कोई चमत्कार नहीं हो रहा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि मंत्र जाप करने से, साधना करने से आप कौन से अनुभव की अपेक्षा रखते हो?
कई लोग कहते हैं कि मैंने इतना जप किया, अभी तक कोई अनुभव नहीं आया। तो कौन से अनुभव की आप बात करते हो? आप जो अनुभव देखना चाहते हो ये चमत्कार है कि हम जप करें और हमारे भौतिक जीवन में चमत्कार हो जाए, हम जप करें हमें नौकरी मिल जाए, हम जप करें हमारी शादी हो जाए, हमारा जो घर बार है वो बड़ा बन जाए, या उसे बेच के हमें पैसे मिल जाए, हमें पद मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले। हम जप करें और हम जिसका चाहे उसका हम बुरा कर दे। हम ये सब अनुभव मानते हैं। हमें ये सब अनुभव चाहिए कि मैं ये करूं और मेरे सामने, मेरी दृष्टि के सामने, मेरे भौतिक जीवन में ये सब हो जाए। तो देखिए, समझ लीजिए कि जब साधना यज्ञ याग आदि करने से अगर आप यही अनुभव की इच्छा रखते हो तो ये अनुभव आपको कभी नहीं मिलेंगे। जो आप फेरबदल करना चाहते हो, अपनी किस्मत में आप कुछ बदलाव करना चाहते हो, ये प्रारब्ध है। जो कुछ आपने किया है उसको आप लेके जन्मे हो, उसी को भुगतने के लिए जन्मे हो, और वही भुगतते भुगतते कुछ और आप ऐसा नया कर रहे हो जिसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यानी आप प्रारब्ध को घुमाने की बात करते हैं, प्रारब्ध में फेरबदल करने की बात करते हैं। ये जो लेख लिखा गया है उस लेख में मेख मारने की हम बात करते हैं, लेकिन पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम फरी फरी जननी जठरे सैनम, ये हम लेके आए हैं। पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम, जहां जन्म होगा और जहां मृत्यु होगा वहां सुख दुख का प्रारब्ध हम लेके आए हैं। और इसी की पीड़ा से हम जप करते हुए ऐसा मानते हैं कि इसमें सब मुक्त होंगे, हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएंगे, हम रंग से राजा हो जाएंगे, हम गरीब से अमीर हो जाएंगे, हमारे दुश्मनों को हम परास्त कर देंगे। तो ये जो सब है, ऐसे कोई अनुभव, ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं। ये भवरोग है, ये भवरोग की पीड़ा है जो हमें दुख दे रही है, हमें कभी सुख दे रही है, हमें अशांति में बदल रही है। क्षणिक हमें कभी शांति मिल जाती है, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम किसी की निंदा में चले जाते हैं, हम मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। ये जो भी कुछ है और जिसको हम बदलना चाहते हैं परिस्थिति के रूप में, ये सब भवरोग की पीड़ा है। और भवरोग का एक ही अर्थ होता है, भवरोग यानी भव यानी जन्म, और योग यानी जन्मने की आदत। रोग का स्वभाव है पीड़ा देना, लेकिन आप देखिए जिसे एक बार रोग हो जाता है वो रोग पीड़ा देता है। उस पीड़ा दूर करने के लिए, रोग को मिटाने के लिए आप दवा भी ले लो, फिर भी जो दवा से ठीक ना हो वो रोग हमारे शरीर की एक आदत बन जाता है। और वो आदत हर रोज हमें लगी रहती है। उसको, वो आदत को मिटाने के लिए, वो आदत कष्टदायी है, उसको मिटाने के लिए हम दवा देते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेकिन दवा से भी ठीक नहीं हो और वो आदत हमारे शरीर को जब लग जाती है उसे रोग कहा जाता है। और इसीलिए भव का अर्थ होता है जन्मना और रोग का अर्थ होता है आदत पड़ जाना। इस जीव को बार बार जन्मने की आदत पड़ी है, इसे बार बार जन्मने की आदत पड़ चुकी है और बार बार जन्मता है, इसलिए वो बार बार मरता है, उसका शरीर मरता है, लेकिन वो जीवित है, इसलिए दूसरे शरीर के भोग भोगने के लिए, दूसरे जन्म में भोग भोगने के लिए वो दूसरा शरीर लेके आता है। यानी भवरोग, बार बार जन्मने की आदत पड़ जाना, ऐसा रोग जिसे लगा है, इस जीव को लगा है, इसे भवरोग कहा जाता है। इसलिए आप देखिए
कि हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों ने 84 लाख योनि की कल्पना कर दी है कि मनुष्य जन्म मिल गया, और यही मनुष्य जन्म को अगर सार्थक हम न कर पाए तो हो सकता है कि दूसरा जन्म किसी खराब कुल में मिले। खराब कुल में मिलने के बाद, वहां कर्म करने के बाद उस दूसरा जन्म उसके नीचे के कुल में मिले, कोई प्राणी योनि में मिले, पशु योनि में मिले, जंतु योनि में मिले, कीटक और कृमि योनि में मिले, और हम उतरते ही जाए, उतरते ही जाए, उतरते ही जाए, जहां वापस उठने की कोई संभावना नहीं। इसलिए इसे भवरोग माना गया। और जो हम जन्म लेके आते हैं, कुछ भोगने के लिए आते हैं। ये भोगायतन है, ये हमारा पूरा जीवन ये भोगायतन है। और इसीलिए उसे सुख के रूप में भोगते हैं, उसे दुख के रूप में भोगते हैं। हम किसी ऐसी जगह पे जन्म ले ले, किसी खाटकी के घर हम जन्म ले ले जहां हर रोज पशुओं को काटा जाता हो, और वहां जन्म लेने के बाद हमारी दैनिक क्रिया, हमारी क्रिया भी वही हो जाए, और बाद में हमें पता चले कि हम ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए, कोई किसी अच्छी योनि में जन्म ले ले, कोई अच्छे परिवार में जन्म ले ले, कोई संस्कारी जगह पे जन्म ले ले, उसका जीवन देखिए, इसका जीवन देखिए। किसी असामाजिक तत्वों के घर में जन्म ले लेना, और बाद में जो जीवन जाता है दारू, जुए और व्यसन में। किसी अच्छे कुल में जन्म लेना, संस्कारी कुल में जन्म लेना, किसी आध्यात्मिक कुल में जन्म लेना, उसका जीवन जो गति करता है वो आप देख सकते हैं। हम सोचते हैं इसने ऐसा क्या किया और उसने ऐसा क्या किया, इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, लेकिन पीछे से कुछ ऐसा करते हुए आए हैं जिसका भोगायतन हमें इस जन्म में करना पड़ता है। कई बच्चे जन्म लेते ही दुखी होते हैं, उनके शरीर में पीड़ा होती है, किसी रोग के अधीन हो जाते हैं, किसी तकलीफ के अधीन हो जाते हैं, उसकी बार बार दवा करने से वो ठीक नहीं होते। तब हम सोचे ऐसा क्या किया इसने कि ये भुगत रहा है। आज का नहीं है, ये पीछे से कुछ ऐसा हुआ है जो इस जन्म में वो भुगतने के लिए आया है, इसे भुगतना है। हमारे जीवन में हम जैसे जैसे आगे जिए, आचार विचार हमारे व्यवहार रहे, अच्छे भले आदमी को भी अच्छी भले तकलीफ हो जाती है, किसी को टीबी हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी का अकाल मृत्यु हो जाता है। उसके कारण हम ढूंढते हैं, कारण हमारे पास नहीं। इसे कैंसर हो गया, इसने कभी व्यसन नहीं किया फिर भी कैंसर। इसका एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया, इसकी कुछ गलती नहीं फिर भी हो गया। ये सब क्या है? तो कारण इस जन्म में ढूंढने के लिए जाओ, ये भव में नहीं मिलेंगे। ये कारण दूसरे के भव से जुड़े, दूसरे भव के कारण थे, इस जन्म में वो कार्य बन गए। और इसीलिए हमारी बुद्धि इसी समय का सोचती है और न समझ पाए, इसीलिए हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं, धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं, ज्योतिष का सहारा लेते हैं, लेकिन उसका मूल कारण भोगायतन है। बहुत पैसा था, ऐसा क्या हुआ, हम भिखारी बन गए, पेड़ी की पेड़ी भिखारी बन गई। हमारे घर में धन था, चला गया, दरिद्रता आ गई। आज क्या हमने किया? आज नहीं किया, पीछे कुछ है, पीछे के भव में कुछ ऐसा कारण है जो आज कार्य बन के निमित्त हुआ है। और जब इसमें से हमें उपाय न मिले तो तरह तरह के उपाय के पीछे हम दौड़ते हैं, और इसे कहा जाता है भवरोग। कि जिस रोग से मुक्त होने की दवा न मिले, या दवा भी मिल जाए फिर भी दुख का आवागमन होता रहे, मन में अशांति होती रहे, तो उसे बोला जाता है भवरोग। आज हम सब भवरोग से पीड़ित हैं। ये जन्म लेने के बाद आज तक हमने जो जिया उसमें दुख भी मिला, सुख भी मिला, मान मिला, अपमान मिला। अगर हम सबको कोई पूछेगा
कि अगले जन्म में क्या बनना है, तो हम कहेंगे आज इस जन्म में जो हूं वो नहीं, उससे कुछ अच्छा बनना है। किसी अच्छे परिवार में जन्म मिले, पैसे वाले परिवार में जन्म मिले, ये जो जी रहा हूं ऐसे नहीं, क्योंकि उससे अच्छा कुछ और जीना है, ऐसा हमारा जन्म मिले, ऐसे ही हम चाहेंगे। अब राजा को जाके पूछो कि राजा ये जन्म में जो तुम्हें मिला है अगले बार यही जन्म चाहिए, तो राजा होगा वो भी बोलेगा ये ऐसा जन्म नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा जन्म चाहिए जिसमें ये खटपट ना हो। है ना? प्रत्येक व्यक्ति अपने इस जन्म से तो दुखी है। इस जन्म से हम सब दुखी है, इसीलिए कुछ अच्छा जन्म चाहते हैं। वापस हमें यही नाम से जन्मना नहीं। किसी को भी आप पूछ लीजिए तो उसका कारण क्या है कि सब कुछ है, कहीं ना कहीं हम दुखी हैं, कहीं ना कहीं हम पीड़ित हैं, और इसीलिए इस पीड़ा का नाम है, इस रोग का नाम है भवरोग। और यह भवरोग से हमें छुड़ाए कौन, यह भवरोग से हमें निकाले कौन, यह भवरोग से हमें बचाए कौन? तो कहा जाता है यह भवरोग की दवा है, एक और एकमात्र दवा है हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम केवलम, सिर्फ हरि नाम इसकी दवा। कालो नाश्यतेव 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 नान्यथा गति। ये वेद व्यास जी ने कहा है कि भवरोग से छूटने के लिए, जन्म की जन्मने और मरने की आदत से छूटने के लिए हरि नाम, हरि नाम, केवल हरि नाम, और कुछ नहीं। गति नान्यथा, कोई गति ही नहीं, इसके बिना कोई गति ही नहीं। और इसलिए वेद व्यास जी ने यहां कह दिया कि हरि नाम, यानी अर्थ हो गया कि औषध है हरि नाम, कि ये भवरोग में से हमें मुक्त कर दे, या भवरोग में से हमें छुड़ा ले, ऐसा नाम है हरि नाम। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये चार जो युग है, ये चारों युग में जहां सतयुग था, उस सतयुग में ध्यान को महत्व दिया जाता था। यद कृतो ध्यायेत, कि वहां ध्यान का महत्व था। सतयुग में ध्यान होता था, तप होता था, इसलिए सतयुग को तपयुग माना गया। सती ने शिव की प्राप्ति के लिए कितने साल तप किया, और सती को तप करते करते शिव की प्राप्ति हो गई। आप सतयुग की कितनी भी कथाएं पढ़ेंगे, उसमें तपाचरण है, उसमें ध्यान है, कि ध्यान करते हुए उसमें यज्ञकम दिखाए गए, ध्यान करते हुए परमात्मा की प्राप्ति। देख लीजिए हिरण्यकश्यपुर, कि हिरण्यकश्यपुर सतयुग में था, उसने तप किया, और तप करते हुए उसने वरदान प्राप्त किया। प्रहलाद, कि उसने तप किया। ध्रुव, उसने तप किया। तो यद कृतो ध्यायेत, कि सतयुग में ध्यान का महत्व है। और जहां त्रेता युग आ जाता है, विष्णु त्रेताग यज्जते मुखो, कि जहां त्रेता युग आया है वहां यज्ञ का महत्व हुआ है, कि त्रेता युग में ध्यान से ज्यादा कर्मकांड के ऊपर महत्व दिया गया। और त्रेता युग में जो अंत भाग में जो वामन अवतार हो जाता है, उसमें आप देखते हैं सतयुग का अंत भाग में जो वामन अवतार होता है, त्रेता की शुरुआत में, वहां बलि राजा ने यज्ञ किया और बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, वहां भगवान प्रकट हुए और 3 कदम भूमि मांगी, एक में पृथ्वी ले ली, एक में स्वर्ग ले लिया, और तीसरे उसके माथे पे भगवान ने अपना चरण रखा। तो आप देखिए कि वह यज्ञ याग आदि का महत्व था। भगवान राम जो जन्मे हैं उस युग में यज्ञ याग आदि का महत्व था।
और इसीलिए विश्वामित्र आते हैं और दशरथ राजा के पास जाते हैं और दशरथ राजा को कहते हैं कि मुझे तुम्हारे 2 पुत्र चाहिए, तुम्हारे जो बालक चाहिए, इसे मैं लेने के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि राक्षस यज्ञ कर्मकांड का ध्वंस कर रहे हैं और यज्ञ को बचाने के लिए, यज्ञ याग आदि परंपरा को बचाने के लिए मैं तुम्हारे दोनों कुमारों को मांगने आया हूं। आप देखिए, यानी भगवान राम का कार्य यज्ञ याग को बचाना था और दोनों जाते हैं, अरण्य में जाते हैं और जहां ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं वहां धनुष लेके वो लोग चौकी पहरा देते हैं। तो उस युग में यज्ञ याग आदि का महत्व था। द्वापार जहां आता है कि द्वापार परिचार्यता, कि द्वापार जहां कृष्ण का युग आया वहां पूजा, षोडशोपचार पूजा, सौंदर्य पूजा, पूजा पाठ का महत्व था और ज्यादा से ज्यादा उस समय में साधना और पूजा का महत्व हुआ। इसीलिए शस्त्र अस्त्र की प्राप्ति के लिए शिव की पूजा, दुर्गा की पूजा, बड़ी बड़ी पूजाएं होती थी और ऐसी मानसिक पूजा, आध्यात्मिक पूजा या भौतिक पूजा करने के बाद देवता प्रसन्न हो जाते। वृंदावन का जो रास था ये महापूजा थी, गोपियां जितनी थी ये सभी भाव थे, कृष्ण स्वयं परमात्मा थे, तो ये पूजा थी, भाव पूजा। आप भगवान के रास गाओ तो रास में भाव है, ये भाव पूजा थी। तो उस समय पे ध्यान और यज्ञ से के महत्व से ज्यादा भी पूजा का महत्व था। और जहां कलयुग आता है, कलयुगात सकीर्तन आता है, कि कलयुग जहां आता है वहां महत्व होता है सनाम कीर्तन का, कि जहां कलयुग आया वहां कलयुग को महत्व दिया गया। आप स्मरण करो नाम सकीर्तन। आप देखिए कि सतयुग में ध्यान हुआ, जहां ध्यान करने के लिए जरूरत पड़ती थी निश्चित जगह, पवित्र जगह की, किसी अरण्य की, किसी वन की, किसी के मार्गदर्शन की। और ध्यान एक प्रकार है साधना का। तो ध्यान में ये सब की जरूरत पड़ती है, आचार विचार व्यवहार। यज्ञ आते हैं, वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है, वेदों की जरूरत पड़ती है। जिसका यज्ञ करना है उस देवता की जरूरत पड़ती है, संविधा की जरूरत पड़ती है, दान धर्म करने के लिए वस्तु की जरूरत पड़ती है, बहुत महंगा हो जाता है। जहां पूजा अर्चना होती है, यहां पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, त्रिशोपचार पूजा, राजोपचार पूजा, जितनी वस्तु, जितने भाव, उतनी पूजा हो जाती है। और राजा जो होता है वो राजोपचार पूजा करता है, उसके पास दुनिया की सभी चीजें वो भगवान को चढ़ा देता है, यानी पूजा भी बहुत महंगी हो जाती है। उसके लिए वस्तु चाहिए, उसके लिए मंदिर चाहिए, उसके लिए ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए नियम चाहिए, अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग मंत्र चाहिए। लेकिन कलयुग में नाम संकीर्तन, कि जहां नाम बोलने के लिए इसमें से कुछ नहीं चाहिए, सबसे फ्री, सबसे मुफ्त, सबसे सस्ता और सरल नाम। नाम बोलने के लिए कुछ चाहिए क्या? भगवान का नाम बोलने के लिए आपको कुछ चाहिए? नाम के लिए तो बोला गया अजपा जाप, प्रति मिनट जाप करते रहो, हलते चलते बोलते बैठते जाप करते रहो। तो जप करने के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं, जप करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं, सहज आसन। आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, आप बैठे भी कर सकते हो, नहाते भी कर सकते हो, खाते भी कर सकते हो, दौड़ते भी कर सकते हो। यानी जप करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं, जप करने के लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं, जप करने के लिए कोई समय की जरूरत नहीं, जप करने के लिए कोई शुद्धि की जरूरत नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी तीर्थ यात्रा से भी महत्व जप का माना गया, किसी की जरूरत नहीं। जप करने के लिए जरूरी ही नहीं है कि आप मंत्र का जप करो,
भगवान के नाम का जप कर सकते हो। तो बहुत बड़ा वृक्ष है भगवान का, जो फल लगे हैं वो भगवान के नाम है। जो चाहे ये वाटिका से आप नाम ले लो, जैसे जो चाहे वो फल तोड़ के हम खा सकते हैं, जैसे जो चाहे वो नाम का जप कर सकते हैं। लेकिन सोने में सुहागा तो तब है जब किसी सदगुरु से हमें नाम से भी ज्यादा वह मंत्र मिल जाए। और उसका एक ही कारण है कि गुरु भवरोग वेद्याय नमः, कि वो भवरोग को जानने वाला एक वैद्य है, वेद्यराज है। उसे पता है कि हमें भवरोग हुआ है, हमारे कौन से ऐसे भोग है जिसकी वजह से हम इस जन्म में यातना भुगत रहे हैं। और जिसे रोग का पता हो, जिसे रोग के कारण का पता हो, उसे वैद्य को औषध का भी पता होता है। इसलिए नाम से ज्यादा मंत्र मिल जाए, और वो मंत्र गुरु के द्वारा जब मिल जाए, तो समझ लीजिए कि भवरोग से मुक्त होने का आधा काम हमारा वहीं हो जाता है। इसलिए सदगुरु को माना गया है कि गुरु ये वेदराज है। भवरोग वेद्याय नमः, कि जहां भवरोग से मुक्त होने का जिसके पास उपाय हो, जिसके पास दवा हो, वो दवा देने वाला वो सदगुरु है। हमें कोई रोग हो जाए, मानो कि हमें पेट में तकलीफ हो, हमें दर्द होने लगे, दर्द हो तो हम हमारे हिसाब से अलग अलग उपचार कर देते हैं, लेकिन वो अच्छा ना हो तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमने बताया डॉक्टर को कि भाई हमें ये प्रकार की तकलीफ है। वो 2-4 प्रश्न पूछेंगे, हम उसके जवाब देंगे। बाद में हमारे रोग का निदान 3 रूप से हो जाएगा। एक, हमने हमारे अनुभव की बात की कि हमें ये तकलीफ होती है। जो वैद्य होगा वो आपके नब्ज मापेगा, और मापने के बाद वो कुछ बोलेगा नहीं, वो सीधा पेन लेके कागज के ऊपर लिखेगा। वो लिखना चालू करेगा। लिखने के बाद उसके पास जो दवा है, जो चूर्ण है, जो दवा है, वो सब 1-2 जो भी 2-4-5 चूर्ण है इकट्ठा करेगा, गोली देगा, सब तैयार कर देगा। तब तक वो बोलेगा नहीं। बाद में आपकी ओर देखेगा, कुछ और फेरबदल करना है वो करेगा। आप कुछ बोलेंगे तो कहेगा बस, और बाद में वो उसका कारण बताएगा कि देखो ये जो तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ या तो वात है, या पित्त है, या कफ। तब से सबसे पहले तुम्हें ये काम करना है कि इसमें जो मैंने लिखा है ये खाना नहीं। और देखना आप, वैद्य ने जो भी परहेज लिखा है वो सब आपको ज्यादा से ज्यादा भाता होगा। उसने लिख दिया है कि ज्यादा मीठा मत खाना, ज्यादा ठंडा मत खाना, ये फल मत खाना, ये मत खाना, ये सब्जी मत खाना, ये आपको दिखाएगा। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने तो ऐसी ही चीज खाने के लिए, वैद्य आपने ऐसी चीज खाने के लिए मना कर दी जो ही मैं खाता हूं, जिसके बिना मुझे कुछ भाता ही नहीं, जिसके बिना मुझे कुछ भाता ही नहीं। और तब वैद्य बोलेगा जो तू ज्यादा से ज्यादा खा रहा है उसी से ये तकलीफ है, इसे छोड़ दे, थोड़े समय के लिए इसे छोड़ दे। और उसमें लिखा ही ऐसा होता है, उसके लिए हम सोचते हैं कि ये तो मुझे ज्यादा भाता है, ये ना खाऊं तो मैं खाऊंगा क्या। तो उसके लिए काफी कुछ चीजें वो खाओ, लेकिन ये नहीं खाना है। तो रोग का निदान कैसे होगा? जो नड़ता है, जिसके संयोग से आपको दर्द होता है, उसे छोड़ दिया जाए, उसका परहेज किया जाए। ये जो दवाएं है उसको ली जाए, इसका संग किया जाए। ये जो दवा है उसे लिया जाए। और तीसरा, मन से
एक भाव रखा जाए सकारात्मक कि ये जो मैं दवा ले रहा हूं ये मैं नियम से लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। यानी ये 3 चीज होती है। एक, कुछ छोड़ा जाए, दूसरा दवा का सेवन नियम से किया जाए, और तीसरा मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये दवा खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा एक पॉजिटिव विचार मन में लाया जाए। ये 3 जब जुड़ जाते हैं तो हमारा असाध्य रोग भी अच्छा हो जाता है। लेकिन रोग क्या खाने से होता है, ये रोग का कारण किसका संग है, किसका संग करने से रोग से मुक्त हो जाते हैं, और कैसे विचार रखने से हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, ये 3 जो बता देता है वो वैद्य है। यानी हमारे बहुरोग के ये 3 कारण जो हमें दे दे, ये 3 उपचार जो हमें दे दे, ये 3 उपचार देने वाला सद्गुरु स्वयं होता है। इसलिए हर एक दुखी जो आता है उसे एक ही दवा नहीं दी जाती, गुरु एक ही साधना नहीं देते। कोई आया जीवन में मेरे ये दुख है, ये मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र सबके लिए समान होता है। आगे मुझे क्या करना है, बस माला करते रहो, जाप करते रहो। और मुझे क्या, कोई आया मुझे क्या करना है, गुरुवार भरो, 52 गुरुवार भरो। कोई तीसरा आया मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, गुरुवार को आना, यहां जो सेवा है वो करना। कोई चौथा आया मुझे क्या करना है, तुझे कुछ नहीं करना है। तेरे जीवन में जो तू कमाए, तेरे खेत में जो पके, थोड़ा अन्न क्षेत्र में देना है। तो ये सब अलग अलग उपचार सबको अलग अलग दिए जाते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो जाए भंडारा कर देना, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं तो ये भंडारा कर देना। और मैंने देखा है शादी नहीं हो रही है, मन से भंडारा मानते हैं, और जैसे भंडारे का पेमेंट देते हैं दूसरे हफ्ते उसकी शादी तय हो जाती है। अब देखिए कई लोग क्या सोचते हैं, शादी लग जाएगी उसके बाद भंडारा करूंगा। क्यों? हमारी शादी नहीं लग रही है, भंडारे के लिए पहले ही नाम बुक करवा दो, पहले ही पेमेंट दे दो। मैंने ऐसे कई किस्से देखे हैं, इधर चेक डाला उधर चेक क्लियर हुआ, और लड़की को और लड़के को दोनों मिल गए और शादी का तारीख भी तय हो गया। यानी पहले होना चाहिए, काम हो जाने के बाद मैं करूंगा ये नहीं, पहले करो। तो कई लोगों को ऐसा भी उपचार दिया जाता है। कहीं बोले मुझे क्या करना है, कहीं को कहते हैं कुछ नहीं करना है, गुरुवार को आना है नहीं आना है, आप वहीं ही बैठो, तुम्हारे लिए जो कुछ करना है एक बार दर्शन करके हो जाए। अलग अलग उपचार होते हैं, अलग अलग साधनाएं होती है। जैसा रोग है, जैसा उसका पीछे के भव का कुछ कारण है, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन हम सोचेंगे मेरे लिए ऐसा कहा, इसके लिए कुछ नहीं कहा। देखो दोनों व्यक्ति अलग है, दोनों के भव अलग है, दोनों के कारण अलग है, दोनों के दुख अलग है, भले एक परिवार से हो। तो ये जो होता है, ये जो साधनाएं दी जाती है, वो सद्गुरु अब सामने वाले के भवरोग को देख के उसे पता चलता है कि उसे क्या कहना चाहिए। और इसीलिए गुरु जो युक्ति बताए, उस युक्ति के हिसाब से अगर आप कुछ करें, किसी को ग्रंथ का पारायण तो ग्रंथ करे, जो जो कहा जाए उस हिसाब से अगर किया जाए तो हमारे इस जीवन के तो दुख मिटते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा एक लक्ष्य है भवरोग से मुक्ति। बहुत जल्दी हमें आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। यानी सद्गुरु का काम केवल यही नहीं है कि आपकी तकलीफ इस जन्म की दूर करे, उसका काम तो है कि आपको जन्म लेने की तकलीफ से वो मुक्त कर दे। एक बार जो आए उसे बार बार जन्म न पड़े, ऐसा जो निवारण कर देता है वो सद्गुरु होता है। लेकिन आप बार बार आओ ऐसा कोई निवारण कर दे तो समझ लीजिए कि ये तांत्रिक है, ये भगत है, ये बुआ है, जो आपको बार बार आपको अपना ग्राहक बना के बैठा है। कुछ दुख दूर हो जाए, ये कर लिया, वापस आप जाओ, आपको जो हैबिट लगा दे उसकी।
गुरु तो सबको छुड़ाने का, सदगुरु छुड़ाने का काम करता है। और इसलिए शायद आपको पता होगा कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि मेरा तीसरा जन्म है, मैं चौथा जन्म लूंगा और चौथा जन्म लेने के बाद मैं वापस सबके बीच में आऊंगा। ये कहने का कारण क्या है? ये कहने का कारण एक ही है कि 3 जन्म से तो मैं आपके साथ आ रहा हूं, कई भक्तों को मैंने मुक्त कर दिया, लेकिन और जो बाकी रह जाएंगे उसके लिए मुझे, आप लोगों के लिए मुझे चौथा जन्म भी लेना पड़ेगा। यानी हमारे गुरु हमारे लिए चौथा जन्म लेने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जो बाकी रह गए हैं उसको जब तक मैं न छुड़ाऊं तब तक मुझे उनके लिए आते रहना पड़ेगा। मैंने आप सोचिए कि सदगुरु का कार्य इसी जन्म के दुखों से मुक्ति नहीं है, इस जन्म से ही आपको दुखों से मुक्त नहीं करवाएंगे। जन्म लेने की जो आदत है, जन्म लेने का जो दुख है, मरने का जो दुख है, ये आवागमन से जो छुड़ाने का काम करे वो होता है सदगुरु। और इसीलिए ये मंत्र जाप भवरोग से मिटा देता है। हमें आना पुनः पुनः आने की जो हमें आदत लगी है, क्योंकि आते हैं तो जब जन्मते हैं तब भी दुख, जो जन्म देता है उसे भी दुख, जन्मने के बाद पूरे जीवन पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक सब दुख, बहुत कम समय सुख का आता है। आज मैं आपको पूछूं क्या भूतकाल में कैसे थे बताए, तो सब लोग ऐसे ही कहेंगे भूतकाल में हम बहुत दुखी थे। कोई अपना भूतकाल में कोई सुखी है ऐसा किसी ने बताया ही नहीं। भूतकाल में आपको कितना भी सुख मिला हो फिर भी आज के मुकाबले भूतकाल दुखी होता है। यानी भूतकाल हमारा याद करने में दुख में चला जाता है, भविष्य हमारा चिंता में चला जाता है, और वर्तमान जो भूतकाल के दुख और भविष्य की चिंता करने में हमारा वर्तमान कुछ भी सोचे बिना चला जाता है। इसलिए हमें सोचना है वर्तमान के सुख के लिए। भूतकाल का दुख, भविष्यकाल की चिंता हमारे वर्तमान के आनंद को बिगाड़ रही है। हमें आज के आनंद का सोचना है, आज के अनुभव का सोचना है, आज के सुख का सोचना है, और यह भवरोग से मुक्ति मिले ऐसा हमें सोचना है। लेकिन भवरोग से मुक्ति क्यों नहीं मिलती? उसका एक ही कारण है कि भवरोग हर जन्म जब लेते हैं और जो हम कर्म करते हैं उस कर्म में जो भी हम बो देते हैं मानसिक रूप से, इच्छा से, वासना से, क्रिया से, वो हमें अगले जन्म का कारण हमारे लिए बन जाता है। जैसे आपने जड़ भरत की कथा सुनी होगी कि जड़ भरत राजा था, बाद में वो ऋषि बना। एक बार जड़ भरत अपने सुबह के प्रातःकाल में सरोवर में सूरज भगवान को अंजलि दे रहा था। उसी समय पे एक मादा हिरणी वहां दौड़ती हुई आई जो पेट से गर्भवती थी और उसका अंतिम समय चालू था। वो वहां आई, उसके पीछे कोई शेर दौड़ा, तो शेर से घबराती हुई भागती हुई वो आके पानी में उतर गई। जैसे पानी में उतरी, पानी ठंडा लगा, उसके प्रसूति का समय एकदम नजदीक था, तो उस संवेदनशीलता से उसकी प्रसूति वहां हो गई। वो भी पानी में कूदी, बच्चा भी पानी में पड़ा। वो तो जैसे तैसे निकल के वहां से भाग गई, लेकिन जड़ भरत जहां पानी में खड़े थे वो बच्चा पानी में डूबने लगा। अपनी सब पूजा पाठ छोड़ के उस बच्चे को उठाया, देखा तो हिरनी भाग गई थी डर की वजह से। छोटा सा बच्चा था। अब छोटा बच्चा है, इसके लिए कुछ, इसको बचाएगा कौन, इसको खिलाएगा कौन, इसको पिलाएगा कौन, उसकी चिंता होने लगी। अपनी कुटीर में लाए, गाय का दूध पिलाया, उसको साफ किया, नहलाया, हर रोज उसे दूध पिलाते थे, उसका संवर्धन करते थे। वो हिरनी का बच्चा उसके आजू बाजू में ही घूमता रहता था।
ये ऋषि मुनि से हिरन के बच्चे से उसकी ऐसी माया लग गई, वो जहां जाए हिरन का बच्चा उसके साथ रहता। धीरे 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 बाप बेटी जैसी माया लग गई। दोनों एक दूसरे के साथ बात करते थे। समय ऐसा हुआ कि वो जो हिरन का बच्चा था वो भी हिरनी थी, वो भी गर्भवती हुई। अब वो गर्भवती हुई, उसने ऋषि ने जड़ भरत ने अपनी बेटी के जैसा उसका उछेर किया। तो स्वाभाविक है कि वो गर्भवती हुई, उस समय पे उनकी माया उसके साथ जुड़ी रही कि मेरी बेटी जैसी है, इसको मैंने बड़ा किया है, अभी उसका समय नज़दीक आया है प्रसूति का, उसे ठीक तरह से होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। ये जड़ भरत की उम्र भी बढ़ने लगी, अंत समय नज़दीक आ गया, मृत्यु सैया के ऊपर थी और यहाँ ये हिरणी गर्भवती थी। बार 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 अंतकाले मावे में स्मरण मुक्तवा कले रव, अंतकाल में भी भगवान का स्मरण छूटा और हिरणी का स्मरण रहा कि जिसको मैंने पाल पोस के, जिसको बेटी की तरह बड़ा किया है, उसकी प्रसूति का काल नज़दीक है, उसकी प्रसूति अच्छी हो जाए। हर मिनट मिनट में उठ उठ के देखते थे कि उसकी प्रसूति हुई कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं। और ऐसा करते 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 वृत्ति हिरणी में चली गई। अंत समय में प्राण छूटा, लेकिन वो प्राण जो छूटा वो दूसरे जन्म में यही ऋषि का आत्मा हरणी के द्वारा हिरण बन के पैदा हुआ। अब देखिए कि कहां तक पहुंचे थे। लेकिन ये भवरोग, कि भवरोग का एक कारण है, भवरोग कि जहां स्पर्श हो जाता है, जहां संग हो जाता है, कि यही संसर्गात भोग दुख एव, कि मन को जिस चीज का संग लग गया दुख यहीं से शुरू हुआ। पहले ऋषि थे, निर्लिप जीते, माया जुड़ गई, माया दुख का कारण है। अंत समय में भगवान के नाम की जगह हिरणी का स्मरण होने लगा, उसे दुख तो न पड़े, दुख न पड़े, उसी के स्मरण में उसके मन को मनोदुख होने लगा। और अंत में जब जीव गया तो हरणी के गर्भ से वो हरण बन के पैदा हुआ। अब देखिए कि जहां भवरोग से मुक्ति का समय आ गया, वहां वापस भवरोग पैदा हुआ, फिर जन्मने की एक लालसा। वृत्ति हिरणी में चली गई, हिरण बन के वो ऋषि आ गए। अब यहां से समझा जाए कि जहां हमारे मन को किसी का संग लग जाए, किसी का स्पर्श हो जाए, मन को, बुद्धि को, चित्त को, वहां से दुख और सुख पैदा हो जाता है। और इसीलिए भगवान ने यहां कहा है कि अद्यावंत कौतेन्य तेषु न रमते बुधो, कि जहां संग के संपर्क से, किसी के संग के संपर्क से दुख आ जाए, ऐसा दुख हमारे जन्म मृत्यु का कारण हो जाता है। लेकिन तेषु न रमते बुधो, कि जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसे संपर्क में कभी नहीं जाते। आप देखिए, हम घर से बाहर निकले, हमारे घर के सामने हमें कुछ अच्छा लगा, ये बंगला हमारा हो जाए, हम चलते चलते कुछ और देखें, ये गाड़ी हमारी हो जाए, किसी पैसे वाले मैं ऐसा बन जाऊं, किसी जुआरी को देखा जाए, जुआरी पैसा कमाता हो, मैं जुआ खेल के पैसा कमा लूं। हमारे संपर्क में जो कोई आए वो व्यसन करते हो, तो इनका जीवन कितना अच्छा है, ये खाते भी है, पीते भी है, जीते भी है, मैं भी ऐसा बन जाऊं। जितने लोगों के संपर्क में आप आएंगे, जितनी वस्तुओं के संपर्क में आपका मन आएगा, उतना मन दुख और सुख के संपर्क में आएगा। वहां से दुख आएगा, वहां से सुख आएगा। और जहां से संपर्क से सुख और दुख जहां आ जाता है, वहां ऐसे ही कर्म हो जाते हैं जो कर्म हमारी वृत्ति बनते हैं, और हमारी वृत्ति दूसरे जन्म के लिए हमारे कारण बन जाती है। इसीलिए हमारा अध्यात्म हमें संयोग से दूर रखता है, हमारा अध्यात्म हमें सत्संग में रखता है, सद यानी अच्छे संग में रखता है। हमारा अध्यात्म हमें अच्छे विचारों के सानिध्य में रखता है। और इसलिए आपने देखा होगा
कि जब तक आप यहाँ नहीं आए थे तब तक कहीं ना कहीं आप बैठते थे, कहीं ना कहीं जाके बैठना, कहीं ना कहीं बातें करना, गलत लोगों के साथ व्यसन करना, कुछ खाना कुछ पीना, ये आपका कल्चर था, खाना पीना बैठना उठना। लेकिन जहाँ यहाँ आने लगे, हर गुरुवार को जहाँ आने लगे, धीरे 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 इन सब लोगों में जो आप बैठते थे कुसंग में, तो आपका कुसंग छूटने लगा। धीरे धीरे ऐसा छूट गया कि आप घर परिवार के साथ रहने लगे। और बाद में जब आपने सोचा कि अरे पहले तो मैं इन लोगों के बीच में बैठता था, शाम को बैठते थे, बातें करते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, कहीं शादी ब्याह का कुछ ऐसा मौका आ गया तो खाने पीने में लग जाते थे। लेकिन अब कितना समय हो गया है, मैं जाता नहीं, कोई मुझे बुलाता नहीं। और आप कभी चले जाओ तो लोग ही कहते हैं कि भाई आप रहने दो, आप जहाँ वही रहो, हमको आपके जैसा सुधरना नहीं है। तो आप देखिए कि आपके अध्यात्म ने, गुरु के संग ने, गुरु के सत्संग ने, आध्यात्मिक ग्रंथों के सहवास ने आपको बदल दिया। ये आंतरिक सुधारणा हो गई। तो जहां दुख हमारी इंद्रियों के संपर्क में, सुख और दुख उसके संसर्ग से आ जाते हैं, संपर्क से आ जाते हैं, ऐसे सुख दुख वृत्ति बनते हुए हमारे अगले जन्म के लिए कारणभूत बन जाते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथ, हमारा अध्यात्म, हमारा सत्संग ऐसे नाशवंत दुखों के पास हमें नहीं ले जाता, हमें शाश्वत वस्तुओं के साथ ले जाता है जहां भवरोग के कारण मिटते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप हमारे जीवन को आंतरिक सुधार देते हैं। हमारा खाने पीने का व्यवहार बदल जाता है, हमारा आचार बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं। और जब वहाँ सब बदल जाए, वहाँ हम सामाजिक जीवन के कार्य करने के लिए वहाँ तैयार हो जाते हैं। इसलिए आज सत्संग की सबसे ज़्यादा जरूरत युवाओं को है। हम सोचते हैं कि बूढ़े हो जाने के बाद भक्ति करेंगे, किसको पता हम बूढ़े भी होंगे क्या नहीं होंगे। हमारे जन्म का कुछ पता है कि इतने साल हम जिएंगे? हम बीमा क्यों उतारते हैं? जिंदगी का बीमा उतरता है, जीवन बीमा, कि हम मर जाए तो उसके बाद हमें कुछ मिले। यानी जिंदगी का जो बीमा उतरता है वो जीवन का होता है। जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम 50 साल के बाद ही मरेंगे। एक्सीडेंट हुआ, आज भी मर सकते। तो जीवन का बीमा निकाला जाता है, इस जन्म का नहीं। तो जहां जीवन का ही भरोसा ना हो, जिस चीज का भरोसा ना हो, उसका बीमा होता है। तो जहां जीवन का भरोसा नहीं है, वहां क्यों सोचा जाए कि बाद में भक्ति करो? आप भक्ति करो या ना करो, हमारे धर्म के साथ जुड़े रहो। और इसलिए मैंने कहा है कि यही सत्संगात भोगा, कि दुख संपर्क से आता है, सुख संपर्क से आता है, और यही सुख और दुख का कारण हमारे जीवन की यातना बन जाती है। आज आप देखिए कि आज के जो युवान है, घर में रहने से ज़्यादा स्कूल में रहते हैं। अगर स्कूल में अच्छे संस्कार मिले तो ठीक, नहीं तो बाद में अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं। वहाँ कोई गलत मिल जाए तो उसका जीवन भी भटक जाता है। कैसी कैसी वस्तुओं का संग होता है, कैसे के पदार्थों का उसे संग हो जाता है, कैसी कैसी फैशनों का उसे संग हो जाता है, जो पूरी करने के लिए घर से अगर पैसा न मिले तो चोरी चपाटी भी हो जाती है। आज मैंने देखा है कि कई ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हार्डवेयर इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग, ये आतंकवाद की ओर बढ़ते हैं। दूसरे मुल्क में आपने देखा होगा कि अच्छे खासे पढ़े लिखे घर बार वाले लोग भी कुसंग के पीछे चले जाते हैं, आतंकवादी भी बनते हैं। कहीं अच्छे अच्छे घर के लोग दारू और जुए की लत में चले जाते हैं लड़के। उसके घर में देखा जाए सब कुछ ठीक है, मगर इनको ये करने का पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कुछ और रास्ता अपना लेते हैं। और इसलिए बोला जाता है ना कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, कि जिसके घर में बहुत पैसा है लेकिन इस चीज के लिए न मिलता हो, वो बिगड़ जाता है। आप सोचिए
और इसीलिए मैं आजकल के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप अपने धर्म ग्रंथों का अनुसरण करें, अपने सनातन धर्म का के नियमों का पालन करें। आपको कोई नहीं कहता कि आप माला करें, आपको कोई नहीं कहता आप जप करें, लेकिन आपका रहन सहन सनातन धर्म के हिसाब से रखें कि हमारे जितने भी त्यौहार है उसे मनाए। दिवाली का त्यौहार घर के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ मिलजुल के मनाए। जन्माष्टमी का त्यौहार मनाए, रामनवमी का त्यौहार मनाए। जहां जहां धर्म कार्य होते हैं वहां जाए। खाना हो, पीना हो, जो भी हो, धीरे धीरे वो सब छूटेगा, लेकिन अपने धर्म के सभी त्योहारों को आनंद और उत्साह से सबके साथ मिलते हुए मनाएं। हाँ, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के जो त्योहार है उसे न मनाएं। जैसे क्रिसमस, कल ही आएगी क्रिसमस, और कल की क्रिसमस आएगी, उसमें हम खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। 31 आएगी, अगले गुरुवार को 31 जब आती है तो ज्यादा से ज्यादा युवान वर्ग होटलों में, बियर बार में, खाने पीने में लग जाता है। खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। ये 31 पे होता है। कई जगह पे 31 का विरोध होता है कि ये पाश्चात्य संस्कृति है, उसे न मनाया जाए। और जो ऐसा विरोध करते हैं उसे हम बोलते हैं कि ये आज के युग के लोग हैं क्या। ऐसी मानसिकता है। आज का युग बहुत आगे बढ़ गया, ये सब नहीं देखना चाहिए। देखिए, ये सब देखना चाहिए। 31 के ऊपर मैं विरोध से भी ज्यादा उसके ऊपर क्रोध रखता हूं। विरोध तो है, लेकिन क्रोध क्यों? हम कोई भी उत्सव मनाए, उसके पीछे का कारण जानिए कि क्यों मनाया जाता है। 31 में ऐसा कुछ है क्या मनाने जैसा? मनाने का कुछ कारण है, आपको पता है? फॉरेन में मनाते हैं तो हमने भी मना लिया। वहां रात को पार्टी होती है, हमने भी कर ली। लेकिन आप सोचिए, 31 का इतिहास जरा जानिए कि 31 दिसंबर और ईस्वी सन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यही ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई और जो अय्याश मुगल राजा थे उसको अपने ताबे में लिया व्यापार के लिए, और यही व्यापार की बदौलत ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज हमारे भारत में घुसे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे पूरे देश को गुलाम बनाया। तो जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वो दिन हम मनाते हैं। हमारी गुलामी की शुरुआत उसी दिन से हुई। मुगल राजा जो अय्याश थे, और वही भोगी राजाओं के कारण हमारे देश में मुगल घुसे। सबसे पहले निजाम ने अंग्रेजों को दावत दी, अंग्रेज आए, वहां व्यापार शुरू हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कपड़ों का व्यापार था। आज देखिए, हमारी संस्कृति के कपड़े भी चले गए। हम जींस पैंट पहनते हैं, पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पहनो। लेकिन वो लोग पहनते थे, इसलिए हमने फैशन में पहना है। वहाँ ठंडा प्रदेश है, वहाँ बार बार कपड़े धोए नहीं जाते, उनके पास टाइम भी नहीं है, इसलिए ऐसे कपड़े पहनते हैं जो एक बार पहने 1 महीने तक पहना जाए। वहाँ चल सकता है, यहाँ नहीं चल सकता। आप जींस पैंट पहनो, मना नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके उसे हर रोज धोया भी करो। ऐसे ही गंदे जींस पैंट पहन के आप मंदिरों में जाएंगे, किसी के बाजू में बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोग तो उसमें से पैदा हो जाते हैं। पहनने में ना नहीं है, पहनो, लेकिन उसे धोना भी करो, धोया भी करो उसे। एक ही जीन्स 5 आदमी पहनता है, और वही पहन के आप भगवान के मंदिर में जाते हो, यही पहन के आप स्कूल में जाते हो, यही पहन के आप घूमते हो। हमारी संस्कृति तो स्वच्छता की संस्कृति है, यानी पहनो जरूर, उसे धोया भी करो। दारू वहां पिया जाता है, ठंडी का प्रदेश है, हम यहाँ पीते हैं। दवा के रूप में हो तो ठीक है, हम नशे के रूप में पीते हैं, और नशा नाश का कारण बनता है। वो लोग पीते हैं तो हम पीते हैं। वहां की संस्कृति का अनुकरण, किसी और का अनुकरण हमारे जीवन के लिए नुकसान है। इसलिए
जो भी ये 31st मनाई जाती है, मेरा तो मानना है क्रोध और विरोध दोनों होने चाहिए। 31st आप क्यों मनाते हो? क्यों बाकी के दिन नहीं है? बाकी के दिनों में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसी दिन क्यों? 31st का विरोध भी होना चाहिए, उसमें क्रोध भी होना चाहिए कि एक ऐसा दिन जिस दिन से हमारी गुलामी का इतिहास लिखना शुरू हुआ और उसे हम मनाएं। बहुत दिन है, बाकी के दिन मनाओ। बहुत उत्सव है, हमारे धर्म के उत्सव मनाओ, क्रिसमस क्यों मनाएं? हमारे भगवान जितने जन्मे हैं उतने उत्सव मनाने की छूट है, लेकिन जिस ईसा मसीह को हम जानते नहीं उसके पीछे हम पागल होकर नाचते। नाचो जन्माष्टमी को, शरद पूर्णिमा को, रामनवमी को, और ऐसे जब दिन होते हैं वैसे हम नहीं। क्यों? मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, हमारी क्वालिटी घोड़ों जैसी क्वालिटी। घोड़े भागते हैं, घोड़े में शक्ति होती है। हमारी पूरे राजाओं की संस्कृति घोड़ों की संस्कृति थी। हमारी संस्कृति घोड़े जैसी है, हम गधे बन रहे हैं। उनका अनुकरण करते हुए घोड़ा गधा बन जाए तो मैं तो मानता हूं कि ऐसा भवरोग, इससे खराब भवरोग क्या हो सकता है। इसीलिए हमारी जो संस्कृति है घोड़े जैसी, भागने वाली संस्कृति है, दौड़ने वाली संस्कृति है। हमारी संस्कृति दूसरों को प्राण देने वाली संस्कृति है। ऐसी संस्कृति के ऊपर सवार हमारे देवता हुए हैं। इसलिए देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़ों के ऊपर सवार हुए, महाराणा प्रताप घोड़े के ऊपर सवार, घोड़े के ऊपर सवार होके ये संस्कृति का पालन किया है। हम गधे क्यों बनते हैं? इसलिए क्रोध और विरोध दोनों होने चाहिए। आप खाओ पियो कुछ भी करो, 31 दिसंबर को नहीं, 31st को नहीं, क्रिसमस को नहीं, बाकी के दिनों में आपको जो करना है वो करिए। और इसलिए मेरा सबसे कहना है कि हमारे धर्म में जितने भी मानते हैं, हमारी संस्कृति में जितने भी लोग मानते हैं, हमारे संप्रदाय में जितने भी लोग जुड़े हैं और जितने युवा जुड़े हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि 31 दिसंबर का विरोध भी हो, उसके ऊपर क्रोध भी हो। यही फैशनों के हम आज गुलाम हुए हैं। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज अंग्रेजी फैशन के हम गुलाम हैं। एक समय ऐसा आएगा कि धर्म परिवर्तन हो जाएगा। आज लव जिहाद का कायदा बना है, क्यों बना है? योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कायदा लगाने की शुरुआत की, क्यों की? ये हो ही रहा है। हमारी बहन दिकरिया जो भी है उसका मानस परिवर्तन करते हुए शादी ही की जाती है धर्म परिवर्तन करने के लिए, और हम लोग उसे जाने देते हैं। तो ऐसा जब यहां कायदा बने, धर्मांतर न हो ऐसा कायदा बने, ये जरूरी है। तो 31 उसका ही एक भाग है। ऐसे कल्चर को हम फॉलो करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, वो करेंगे, एक समय ऐसा हो जाएगा हमारे हिंदू धर्म के जितने भी उत्सव है हम मनाना छोड़ देंगे। आप देखिए कि 31 में जितनी भीड़ होती है इतनी रामनवमी में नहीं होती, इतनी जन्माष्टमी पे नहीं होती, नए साल में उतनी नहीं होती, और हम वो मनाते हैं। 31 का दिन छोड़ दीजिए, बाकी के दिन आप करिए। हमारे जब जितने त्यौहार है उसमें मनाएं, लेकिन ऐसा कोई कल्चर आप न करें कि जिससे हमारा कल्चर बदल जाए। इसलिए क्रोध और विरोध होने चाहिए। अगले गुरुवार को 31 दिसंबर है। अगला गुरुवार 31 तारीख और दिसंबर का गुरुवार है, और मैंने ऐसे सोचा है, और मैं सभी युवाओं को, सभी लोगों को, युवाओं को क्या, मैं सभी को कहता हूं, 31 का दिन हम क्रोध और विरोध के दिन में हम मनाएंगे। जितने भी युवा हैं, जितने भी घर के सब हैं, एक काम करेंगे, लाल और काला कपड़ा पहनेंगे। लाल कपड़ा क्रोध, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, हमारा देश गुलाम हुआ, क्रोध, और काला कपड़ा विरोध। उस दिन नाथ संप्रदाय में मानने वाले जो भी युवा है, जो भी कोई है, सभी को मैं बोलता हूं, युवा ही नहीं, सब
अपने अपने फोटो शेयर करिए। लाल और काले कपड़े पहनिए, 2-2 व्यक्ति, 3-3 व्यक्ति 31 के लिए क्रोध और विरोध बताए कि हमें क्रोध भी है, हमें विरोध भी है। और ऐसे जितने भी फोटो हो विचार गंगा के ऊपर, आपके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डालिए और लिखिए कि 31 का हम क्रोध और विरोध दोनों करते हैं। हमारे जितने भी युवा हैं, उस दिन लॉकडाउन भी चलता है, फिर भी उस दिन घर पे ही रहेंगे, जो करना है घर पे करेंगे, लेकिन दारू, नॉनवेज, पार्टी उस दिन के लिए नहीं होगी। और इसका समर्थन सभी भक्तों को करना पड़ेगा। अपने अपने फोटो लाल और काले कपड़ों में, ऊपर लाल नीचे काला, क्रोध और विरोध। और कोई भी फोटो आप पाड़ो, वो कोई भी सेल्फी भी हो, वो सेल्फी भी हंसती हुई नहीं होनी चाहिए, गंभीर, क्रोध वाली गंभीर होनी चाहिए। और नीचे लिखा जाए क्रोध और विरोध का दिन 31। और ऐसे सब फोटो शेयर हो सकता है कि हमारी संस्कृति को हम बचा पाए। तो अगले गुरुवार के लिए सुबह से ये सब हमको करना है। सबके पास मोबाइल है, आप भले नौकरी पे जाओ अपने यूनिफॉर्म पहन के, लेकिन 5 मिनट के लिए भी लाल और काला कपड़ा पहन के विरोध होना चाहिए। और वो सब फोटो अपलोड होने चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी साइट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और अगला जो गुरुवार होगा, ये गुरुवार भी ऐसा ही होगा। हम जो भी यहाँ आएंगे, लाल और काला कपड़ा, जितने भी कोई दर्शन के लिए आए लाल और काला पहने और फोटो अपलोड कर दीजिए कि 31 का विरोध और क्रोध हम दोनों करते हैं। हमारी पीढ़ी में कुछ नया उतरेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, क्योंकि खाना पीना, व्यसन, फैशन, इसके संपर्क से दुख और सुख जीवन में आएंगे। और ऐसा दुख आएगा जो हमारे पूरे परिवार के लिए विनाश का कारण होगा। इसलिए ऐसा कोई संपर्क ना हो, सिर्फ नाम जप हो, भगवान का नाम ले, भक्ति भाव करे, घर में बैठे, और ये भवरोग की पीड़ा है, उससे हम सब मुक्त हो जाए। लेकिन 31 का विरोध हम पूरे संप्रदाय में सब एक साथ मिलके हम करेंगे। तो आज के गुरुवार को बस इतना ही कि आवागमन की जो आदत हमें पड़ी है, यह भवरोग संपर्क से, फैशन के संपर्क से, व्यसन के संपर्क से, कुविचारों के संपर्क से हमारे जीवन में कुछ नई वृत्तियां लिख देता है, जिसे भुगतने के लिए हमें बार बार आना पड़ता है। तो क्यों ना हम सब जपे नवनाथ का नाम प्रेम आदर के साथ, अनुभव से दादा नाथ कहे, हो जाए भवरोग का नाश। तो हमारे जीवन में भवरोग का नाश हो, प्रेम आदर से मंत्र जाप करते रहे, हमारी संस्कृति को ही हम प्राधान्य दे, हमारी संस्कृति के साथ जिए, और ऐसे जो भी कुछ दुख है, ऐसे जो भी कुछ विकृतियाँ है, उसे हम नाश कर दे। ऐसी प्रार्थना हम गुरुदेव के चरणों में आज के गुरुवार पर हम करते हैं। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए यही प्रार्थना हम करें।
गोरक्षजालंधर चरपटाश्च अड़गंगकानीफमच्छेन्दराज चौरंगी रेवाणक भर्तुवरी सज्ञा भूम्याम्बूर्णनवनाथ सिद्धः जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ स्वामीनाथ महाराज की जय। छोटे दादा की जय। भंडारे में योगदान दर्पणाबेन चौधरी 10 किलो चावल, भगुभाई पटेल 10 किलो चावल, शैलेश भाई चौधरी 20 किलो चावल, भरत भाई पटेल मसाड़ 30 किलो लौकी, मनीष भाई पटेल मसाड़ 10 किलो भिंडे, 30 किलो नींबू, निमेश भाई आहिर मजीगाम 12 किलो चावल, हिरलबेन चिखली 50 किलो नारियल, शांतुभाई चौधरी 30 किलो बैंगन, 20 किलो भिंडे, झलक भाई गोकुल भाई पटेल वांदरवेला 50 किलो चावल, बल्लू भाई पटेल 10 किलो चावल, नीलाबेन चौधरी काकड़वा 20 किलो बैंगन, ईलाबेन पटेल पूना 20 किलो चावल, जीतूभाई पटेल बोलवाक उन्होंने सोफ़ा सेट आश्रम के लिए दिया है। वो खुद मिस्त्री का काम करते हैं। काफ़ी समय से उनकी इच्छा थी जीतू भाई की कि आश्रम में उनकी ओर से कुछ फर्नीचर हो, तो उन्होंने बैठने के लिए सोफ़ा सेट अपने हाथों से बनाया है और आश्रम को भेज दिया है। आज का भंडारा स्मिताबेन छनाभाई पटेल कुपरली की ओर से, उनके परिवार की ओर से आज का भंडारा है। तो ये सब जिन्होंने दान धर्म किया है और जिनकी ओर से आज भंडारा है, उन सब के लिए मैं परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ, सब सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और सबके ऊपर भगवान की कृपा हो। दत्त जयंती 29 ડિસેમ્બર મંગળવાર। દત્ત જયંતિનો ઉત્સવ 29 ડિસેમ્બર અને મંગળવારે એટલે હવેના મંગળવારે છે। સરકારની એસઓપી આવી છે। એસઓપીમાં કોઈ નવો ફરક કર્યો નથી। 200 માણસ કે એનાથી ઓછા 50 માણસ જેટલા હોઈ શકે, જે પ્રમાણે લગ્નોની અંદર ચાલે છે તે પ્રમાણે, પણ જગજાહેર ધામધૂમથી ઉજવી શકાય એવું નથી। અને આમ પણ મહામારી એક નવું રૂપ ધારણ કર્યું છે, એટલે આપણે પણ બધા નિયમો તો પાળવા પડશે। પણ વર્ષોની જે પ્રમાણે ઉત્સવ ઉજવવાની પરંપરા છે, જે આજ સુધી ચાલુ રહી છે, એ પ્રમાણે બહુ સંક્ષિપ્તમાં અને નિયમોને આધીન રાખીને દત્ત જયંતિનો ઉત્સવ સવારના જ ઉજવાશે। સવારના ગુરુદેવનું પૂજન, દત્ત ગોરખનું પૂજન અને ત્યાર પછી દર્શન માટે જે પણ ઘરે હોય તે બધા ઘરે રહે અને રાતનું પ્રવચન તમે રાતના 8 વાગે સાંભળી શકો। પણ સંક્ષિપ્તમાં એક ઉજવવાની પ્રથા પ્રમાણે પારંપરિક રીતે જે ઉજવાય છે તે નિયમ અનુસાર આશ્રમના પરિસરમાં આ ઉત્સવ બહુ થોડા માણસોની અંદર, રોજિંદા માણસોની અંદર જ ઉજવાશે। માટે જે પણ ભક્તો હોય એને ઘરેથી પ્રવચન સાંભળવાનું અને ત્યાં જ દત્ત ભાવની બોલીને દત્ત ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની। પણ સવારનો શિડ્યુલ છે એટલે છૂટાછવાયા કોઈ દર્શન માટે આવી જાય તો પ્રોટોકોલ પ્રમાણે દર્શન આપીને એણે પોતાના કામે આગળ નીકળવાનું રહેશે। પણ જગ જાહેર ઉત્સવ નથી, એટલે મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને આશ્રમના નિયમ પ્રમાણે આ પ્રથા ઉજવાશે, એનું દરેક જણા ધ્યાનમાં રાખે અને આ પ્રમાણે ઉત્સવ ઉજવાય। આ કેલેન્ડર બહાર પડ્યું છે, સ્ટેન્ડિંગ કેલેન્ડર, જેણે પણ લેવું હોય તે ટેબલ ઉપરથી તમે લઈ શકો છો। 31 વિચાર છે આની અંદર અને 31 વિચાર, દરરોજનો એક નવો વિચાર તમે એ કરી શકો અને એ પ્રમાણેનું આ કેલેન્ડર છે। તો દરેક જણા જેણે લેવું હોય તે આ કેલેન્ડર લે, અલગ અલગ વિચારોવાળું આ કેલેન્ડર છે અને આ પ્રમાણે આપણે સૌ મંત્ર જાપ કરતા રહીએ, સત્સંગ કરતા રહીએ, સંસ્કૃતિનું પાલન કરીએ અને ફરી પાછું હવેનો ગુરુવાર 31 ડિસેમ્બરનો ગુરુવાર છે। બધા જ ભક્તો ક્રોધ અને વિરોધ, મનમાં ક્રોધ અને વર્તનથી વિરોધ દરેક જણા રાખે અને લાલ અને કાળા કપડાં પહેરીને આપણે બધા એનો વિરોધ અને ક્રોધ બતાવવાનો
આપણે ઘરમાં જ રહેવાનું, વડીલો સાથે રહેવાનું, સારું કામ હોય કે ખરાબ કામ 31 તારીખે આપણે કંઈ કરવું નથી, સત્સંગ કરો બેઠા બેઠા, બાકીની તમારી ઉજવણી બાકીના દિવસોમાં કરજો. પણ દરેકને મારે ખાસ કહેવું છે, સંસ્કૃતિ પઢાઈ એવા જ સંસ્કારો આપણા બાળકોને પણ હવે આપતા જાઓ. હવે સમય આવ્યો છે કે આપણે બધા જ આપણી સંસ્કૃતિ માટે, આપણા ધર્મ માટે સતર્ક થઈએ. અને દરેક યુવાનને એટલું કહેવું કે યુવાનો અબ સુન લો તુમ પે મેરા લલકાર હૈ, સનાતન ધર્મ કા પાલન કરના હમ સબકા જન્મ સિદ્ધ અધિકાર है. અને સાથે સાથે 31 दिसंबर का विरोध करना भी हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है. માટે આ બંને ધ્યાનમાં રાખો. ધર્મનું પાલન આપણો અધિકાર, અને બીજા ધર્મની ખોટી પ્રવૃત્તિનો વિરોધ એ પણ આપણો અધિકાર છે. માટે આપણે કરશું તો આવતા ગુરુવારે આ દરેક જણા ધ્યાનમાં રાખે. દત્ત જયંતિનો તહેવાર સંક્ષિપ્તમાં ઉજવાશે, ત્યાંથી પ્રવચન તમે રાતના સાંભળજો. તો દરેક નાથ ભક્તોને મારું આટલું ખાસ કહેવું છે. આજના ગુરુવારે આટલું. બધાને જ જય અવધૂત, જય જય મચ્છેન્દ્ર સમર્થ અને આદેશ.